بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور اب تک کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ سب سے پہلی نیوز ہیڈ لائنز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اطلاعات فواد چودھری کی نااہلی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا سیاسی معاملات عدلیہ کی مداخلت کے بغیر حل کیے جانے چاہیے۔ عدلیہ کی جانب سے منتخب نمائندوں کو نااہل قرار دینے کے انصاف کے منافی ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایف آئی اے کو پیکا ترمیمی آرڈیننس کے تحت گرفتاری سے روک دیا۔ کہا آرڈیننس کے لیے قواعد و ضوابط پر کام جاری ہے، قواعد و ضوابط کی تیاری تک کسی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ لاہور ملکی سیاست کا مرکز بن گیا۔ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اپوزیشن کے سرکردہ رہنماؤں کی بیٹھک۔ مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر شریک۔ موجودہ سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد پر بات چیت۔ حکومت کا اپنے 3 MNAs کو عدم اعتماد کے لیے پیسوں کے آفر کا دعویٰ۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے گولیاں لگنا شروع ہو گئیں، یہ شرمناک حرکت ہے، ان میں جرت ہے تو کل ہی عدم اعتماد لائیں، ہم خاص ٹریڈنگ نہیں ہونے دیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا 23 سال بعد روس کا دورہ۔ عمران خان کی اس دور میں مصروفیات کے حوالے سے جانتے ہیں زنیرہ رفیع کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان آج سے روس کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے پر اعلیٰ سطح کا وفد بمشمول وفاقی وزراء وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ صدر پوٹن اور وزیر اعظم کی ملاقات اس دورے کا اہم ترین جزو ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ماسکو میں روس کی سب سے بڑی مسجد و اسلامک سینٹر کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اہم روسی قیادت بمشمول نائب وزیر اعظم، روسی سرمایہ کار اور تاجر ملاقاتیں کریں گے۔ صدر پوٹن سے ملاقات میں وزیر اعظم بین الاقوامی اور خطے کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور ملاقات میں روس پاکستان 2 طرفہ تعلقات خصوصاً توانائی شعبے پر بھی بات چیت ہوگی۔ اسلاموفوبیا اور افغانستان کی صورتحال بھی زیر غور لائی جائے گی۔ وزیر اعظم کا دورہ روس اور پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر داخلہ اور ملک کے نامور سیاستدان سینیٹر رحمان ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رحمان ملک کورونا کے باعث ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم نے سوگوارو میں بیوہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے اسامہ بٹی۔ 1951 میں پیدا ہونے والے رحمان ملک کا تعلق پنجاب کے شمال مشرقی علاقے سیالکوٹ سے تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کراچی سے شماریات میں گریجویشن کی اور بعد ازاں اسی ادارے سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے سول سروس میں کیریئر کا آغاز 1973 میں کیا اور حکومت کے بیورو آف امیگریشن میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ 1987 میں انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA میں بطور اسپیشل ایجنٹ کے لیے کام کرنا شروع کیا، جس میں انہوں نے کئی عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ بے نظیر کی دوسری حکومت کے دوران وہ مزید طاقتور بیوروکریٹس میں سے ایک کے طور پر ابھرے اور FIA کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر 1993 سے لے کے 1996 تک فائز رہے۔ بے نظیر نے انہیں نواز شریف کی کرپشن کی تحقیقات کا کام بھی سونپا۔ انہوں نے بطور DG FIA کئی کامیاب آپریشنز کیے، جن میں سے ایک یوسف رامزی جو کہ 1993 ورلڈ ٹریڈ سینٹر بامبنگ میں ملوث تھا کو امریکہ کے حوالے کیا۔ بے نظیر کی حکومت برطرف ہونے کے بعد 1997 میں انہیں بدعنوانی کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں ضمانت مل گئی۔ اس کے بعد وہ افغانستان اور پھر برطانیہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی نجی سیکیورٹی فرم کا آغاز کیا۔ انہوں نے بے نظیر کی خود ساختہ جلا وطنی کے سالوں میں ان کی مدد کی۔ رحمان ملک نے بے نظیر اور مشرف کے درمیان معاہدہ کرانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا اور بے نظیر کی ملک واپسی میں بھی ان کا کلیدی کردار تھا۔ اس کے بعد وہ بے نظیر کے سیکیورٹی چیف کے طور پر ابھرے۔ اعلیٰ مذاکرات کار کے طور پر ان کے کردار نے رحمان ملک کو بے نظیر کا سب سے قابل اعتماد ساتھی بنا دیا۔ بے نظیر کے قتل اور 2008 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد رحمان ملک جو کہ سینٹ کے لیے بھی منتخب ہوئے تھے کو وفاقی وزیر داخلہ مقرر کر دیا گیا۔ جون 2012 میں سپریم کورٹ نے دوہری شہریت رکھنے پر رحمان ملک کی سینٹ کی رکنیت معطل کر دی، لیکن رحمان ملک کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے 25 مارچ 2008 کو اپنی شہریت ترک کر دی تھی۔ میثاق جمہوریت کروانے میں بھی ان کا بہت اہم کردار تھا۔ رحمان ملک 4 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جن میں مودیز وار ڈاکٹرین، داعش رائزنگ مانسٹر، بلیڈ کشمیر اور کرونا وائرس تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی شامل ہیں۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک جنوری میں کورونا کا شکار ہوئے اور اسلام آباد کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد آج صبح انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر سیاسی، سماجی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسامہ بھٹی، A1 TV، اسلام آباد۔ پاکستان میں ہوائی سفر کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی، فیصلہ NCOC کے اجلاس میں کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں حماد معروف۔
पाकिस्तान में हवाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। NCOC ने हवाई सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। फैसला NCOC के इजलास में किया गया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास में फैसला किया गया। मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा मुसाफिरों के लिए परवाज से कबल PCRC की मनफी रिपोर्ट जमा कराने की शर्त खत्म कर दी गई। NCOC के मुताबिक 12 साल से ज्यादा उम्र के गैर वैक्सीन शुदा अफराद को परवाज से कबल PCRC टेस्ट की मनफी रिपोर्ट जमा करानी होगी। 12 साल से कम उम्र के मुसाफिरों को लाजमी वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना हासिल है। जी पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ मरहले का आज से लाहौर में आगाज होगा। पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीम ने आमने सामने होंगी। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से जुनैरा रफ़ी। वैसे तो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को कर रहे हैं, पर आज मुल्तान सुल्तान का इंशाल्लाह जीत जाएगी। PCL तो हम शुरू से देखते हैं और बहुत अच्छा PCL जा रहे हैं, और आज जो है ना लाहौर और मुल्तान का मैच है। हम लाहौर को आज सपोर्ट करते कि लाहौर जीते। लाहौर एफर्ट बहुत कर रहा है, लेकिन मुल्तान ने काफ़ी अच्छे मैचेस जीते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए आज मुल्तान जीत जाएगी। ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा। आप मुझे ये बता दें कि आप ESL देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो आपकी फेवरेट टीम अभी कौन सी है और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जो है जब से PSL स्टार्ट हुआ है वैसे तो जो है ना मैं कराची को सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन अब जो है ना ज़ल्मी को, पेशावर ज़ल्मी। आपको क्या लगता है आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का मैच है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? मुझे ये लग रहा है कि मुल्तान जीतेगा इंशाल्लाह। मुल्तान जीत जाएगी। कराची बाहर हो गया, आपको अफसोस नहीं हुआ? अफसोस तो बहुत हुए, बस क्या करें अभी। अच्छा, वैसे स्पोर्ट की बात आ जाती है तो मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करता हूँ। तो अभी अगर जीतने की बात आ जाती है, देखें मुल्तान तो टॉप पे जा रहा है और उसका जो ऊपर के टॉप के ओपनर मतलब वो भी खेल रहे हैं, और लो और मिडल ऑर्डर भी उसके बैठे हुए अच्छे खेल रहे हैं। जैसे रेल रोड सो फॉर्म में आ गया है, तो दूसरा टीम डेवर भी अच्छा खेल रहा है, और रज़वान खुद फॉर्म में है। तो दूसरा ये है कि ये क्या लगता है कि कौन जीतेगा आज मुल्तान और लाहौर का टक्कर है। आज देखते हैं, शहनशाह अफरीदी भी खुद अच्छी फॉर्म में, और बॉलिंग उनकी देख लें आप, जैसे इंडिया के ख़िलाफ़, और उस दिन भी उन्होंने इस तरह जैसन रॉय को आउट कर दिया था, और बॉलिंग उनकी भी फॉर्म में, और दूसरा फ़खर ज़मान वो भी अच्छी फॉर्म में। तो मुकाबला आज इंशाल्लाह अच्छा होगा, दिलचस्प। नवाब अली मोहम्मद में निजी स्कूल में साइंसी और रिवार्ड तकरीब मुनक़्क़द की गई। मज़ीद जानते हैं नवाब अली मोहम्मद से नुमाइंदा वन TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब अली के नज़दीक शान पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में साइंसी और अवार्ड तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें पहली से 8वीं जमात के तलबा और तलबात में अपने हाथों से रियाजी, इंग्लिश और साइंस के प्रोजेक्ट बनाए और पेश किए, और प्रेजेंटेशन भी उन्होंने पेश की। जबकि स्कूल में बेहतरीन पोजीशन उठाने वाले तलबा और तलबात में, जिनमें वसीम, गुलाम मुर्तज़ा, इसरार, मला, अयाज जोनिजो, अक्सीर, राज अली, हाकम अली, शोहाना, शहबाज और दीगर तलबा तलबात में इलाके के मोअज़्ज़िज़ अमीर हमदुस्सातो और नामवर सहाफ़ी यूसुफ रिंद, स्कूल के ओनर अरशद अली राहू, हेडमास्टर जाहिद हुसैन राहू ने अवार्ड दिए। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि इन तकरीबों का मुनक़्क़द करने से तलबा और तलबात में खुद एतमादी आएगी, और ये आगे जाके इंशाअल्लाह बड़े मनसब पर पहुँचेंगे। जी अहले कलम नहते सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने और बेहमाना कत्ल गारत पर मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी में तशवीश की लहर। गुज़श्ता रोज़ ज़िला कसूर के शहर अलाहाबाद में निजी अखबार के नुमाइंदे पर शरपसंद अनासर की जानिब से तशद्दुद किया गया। वजह अनाद बताई जाती है कि रिपोर्टर राना जफ़र इकबाल अलाहाबाद शहर समेत मुल्क देहात के मसाइल उजागर करने में पेश होते हैं। इनको एक मुतासर खातून की आवाज़ बनने पर मुलज़मान, कामरान और दीगर वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलज़मान के खिलाफ थाना अलाहाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर मुतासर सहाफ़ी के खिलाफ थाना अलाहाबाद में मुलज़मान की मदयत में क्रॉस FIR का इंदराज कर दिया गया है, जिस पर सहाफ़ियों ने इंसाफ के हुसूल के लिए शदीद एहतजाज किया। रैली में शरीक तहसील भर के सहाफ़ियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों पर जुल्म व ज़्यादती, कत्ल व गारत को बंद किया जाए, और नहते सहाफ़ियों की आवाज़ को दबोचने की नाकाम कोशिश करने वालों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाए। नवाब शाह में हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के ताउन से शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में सिंध की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट की रंगारंग तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जालबानी ने किया। मज़ीद जानते हैं नवाब शाह से नुमाइंदा वन TV रहम अली जरदारी से। जी बिल्कुल, नवाब शाह से आपको बता रहे हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के ताउन से शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीराबाद में सिंध के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट
2022 का आगाज हो गया। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाले टूर्नामेंट के रंगारंग तकरीब का इफ्ताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जलबानी ने किया। इस टूर्नामेंट में सिंध के 11 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हिस्सा ले रही हैं, जिनमें IBA यूनिवर्सिटी सक्कर, मेरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो, सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम, शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर, सूफी आजम यूनिवर्सिटी भिटशा और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद शामिल हैं। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जलबानी ने कहा कि तालीम के साथ साथ खेल अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। उन गैर निसाबी सरगर्मियों की वजह से यूनिवर्सिटी के तलबा मुस्तकबिल में खुद को कौमी सतह पर मनवाएंगे। जी खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां बॉर्डर मिलिट्री पुलिस चेक पोस्ट बवाटा के SHO दर मोहम्मद खान लगारी की टीम के हमरा कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कारों को अपनी तहवील में ले लिया गया। दर मोहम्मद लगारी का कहना था कि कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद अकराम मलिक की हदायत पर चेक पोस्ट बवाटा पर जराइम का खात्मा अवलीन तरजीह है। चेक पोस्ट बवाटा पर चेकिंग के सख्त इंतजाम किए हुए हैं। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी की जानिब से पुलिस लाइन मीरपुर खास में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर अता मोहम्मद निजामानी, RI पुलिस लाइन इस्माइल कायम खानी, SHO टाउन ज़ीशान लिशारी, इंचार्ज ट्रैफिक नूर मोहम्मद मरी और इनके हमरा मौजूद थे। इस मौका पर SSP का कहना था कि DIG कम्प्लेक्स, पुलिस लाइन और तमाम थानों में दरख्त लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज पुलिस लाइन मीरपुर खास से हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि हर इंसान को दरख्त लगाकर इसकी परवरिश करने का अहद लेना होगा। उनका मजीद कहना था कि दरख्त इंसान के लिए बेहद जरूरी है। साफ हवा और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए दरख्तों का लगाया जाना हदीस से साबित है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू के नवाही इलाके मोहसिनवाल तलम्बा से, जहां लोड रिक्शा और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हो गया। एक ही गांव के 5 अफराद जाम बहक हो गए, जिसमें 4 ख़वातीन और एक कमसिन बच्ची भी शामिल है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा शाहिद। जी, इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास खुद DSP सर्कल मार नासर अली साकब और थाना तलम्बा पुलिस के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए। ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से लोडर रक्शे पर सवार 4 ख़वातीन और एक बच्चा जाँ बहक, जबकि 6 अफराद जख्मी, जिनको इलाज मुआवजे के लिए THQ अस्पताल मियां चन्नू मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौका से फरार। ट्रैक्टर ट्राली को कब्जा पुलिस ले लिया गया और फरार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा नंबर 104/22 थाना तलम्बा दर्ज कर लिया गया। टिंडोजाम में मुगल बरादरी के दुकानदार और कमहार बरादरी के दुकानदार के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के तनाज़े पर झगड़ा। दोनों बरादरियों के लोग थाने पहुंच के मजीद जानते हैं टिंडोजाम से नुमाइंदा A1 TV इमरान कायम खानी से। जी बिल्कुल, मुगल बिरादरी के दुकानदार और कुमार बिरादरी के दुकानदार के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के तनाज़े पर झगड़ा हो गया, जिसे लेकर दोनों बिरादरियों के लोग थाने पहुँच गए, जिस पर हैदराबाद बिजनेस फोरम टंडोजाम के सदर पप्पू राजपूत ने दोनों ग्रोहों को थाने से अपनी दुकान पर ले जाकर अफ़वाम तफ़हीम से फैसला कराते हुए दोनों बिरादरियों के लोगों को आपस में गले मिला दिया, जिस पर दोनों दुकानदारों ने SHO टंडोजाम काशिफ हुसैन गडाई साहब के ताउन को सराहते हुए बिजनेस फोरम टंडोजाम के सदर पप्पू राजपूत का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इकराम कुमार, बशीर कुमार, नूरुद्दीन मुगल और तलहा मुगल भी मौजूद थे। रिपोर्ट इमरान कायम खानी, A1 TV टंडोजाम। गैपको जलालपुर बटिया के मुलाजमीन की नाअहली, शहर भर की गलियों बाजारों में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए खौफ की इलामत बन गईं, जबकि गैपको सब डिवीजन जलालपुर बटिया अफसरान और अहलकार लंबी तान कर सो गए। मजीद जानते हैं जलालपुर बटिया से नुमाइंदा A1 TV मोहम्मद आरिफ हाशमी से। जी बिल्कुल, जलालपुर बटिया में बिजली की तारें शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गई। शहर के गुंजान आबाद इलाके हों या करीबी महलों के गलियां बाजार, बिजली के झूलते ये तार इलाका मकीनों के लिए अजाबे जान बन गए, जबकि गैपको सब डिवीज़न जलालपुर भटिया अफसरान और एहलकार लंबी तान कर सो गए। नंगे जोड़ नालियों और जगह जगह ज़मीन पर पड़े बिजली के तार वापडा मुलाजमीन की बेहिसी की मुकम्मल तस्वीर है। गली कूचों में खेलते छोटे छोटे मासूम बच्चों की दाव पर लगी जिंदगियां तो दूसरी जानब राहगीरों के लिए गुजरने में दुश्वारी का सबब
सबब बनने वाले ये तार गैपको सब डिवीज़न के मुलाजमीन और अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गली कूचों में बिजली के ये तार शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं, मगर वापडा मुलाजमीन शायद किसी बड़े साने के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद आरिफ हाशमी, A1 TV, जलालपुर बटियाँ। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।